वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ द एसे टॉक पॉडकास्ट। जहां मैं बात करता हूं एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट से सो दैट यू गेट इनसाइट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड आइडियाज टू इम्प्लीमेंट। So today we have with us Mayur Mundada, the founder of Ambition Box. Ambition Box was acquired by Naukri.com within 1.5 years after it was launched. And currently Ambition Box is helping about or more than 25 lakh job seekers to find great places to work. तो बात करते हैं मयूर मुंडाडा से कि उन्होंने कैसे इतनी जल्दी फंडिंग रेज करी, कैसे नौकरी डॉट कॉम ने इतनी जल्दी एक्वायर कर लिया उन्हें, और भी मयूर की जर्नी के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू मयूर फॉर ज्वाइनिंग अस। Sure. Hi. Glad to be here. तो मयूर स्टार्टिंग में एक गेम खेलते हैं हम। 3 क्वेश्चन है, बहुत छोटे-छोटे, बहुत Okay. सिंपल से एज़ आइस ब्रेकिंग सेशन। तो पहला Sure. क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर यू एस्पायर टू बी या एन एंटरप्रेन्योर यू लुक अप टू। कोई ऐसी इंस्पिरेशन है आपकी? I think and all of them, जो भी लोग I think risk लेते हैं, I admire almost all of them. ऐसा कोई particular नहीं है, but of course वो तो and if you ask me, otherwise the list is very long also. हुँ, हुँ। है ना? तो even जो Elon Musk, Mark Zuckerberg, right? And even Snapchat के founder, even Spiegel वगैरह सब लोग ही वो तो I think I admire almost all of them because most of them जो उन्होंने companies बनाई है, I think they are literally changing the world. They have changed the world for better or good. राइट एंड जो जिस टाइप से लोग पुश कर रहे हैं आई थिंक ह्यूमन रेस फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं आई थिंक दैट इज ह्यूज लाइक फॉर एग्जांपल अभी एप्पल का जो मार्केट कैप है इट्स अबाउट टू रीच 2 ट्रिलियन राइट इंडिया की जीडीपी के नजदीक जा रहा है वो तो इट इज माइंड ब्लोइंग कि हाउ मच इम्पैक्ट जस्ट वन कंपनी कैन हैव right and how much impact just two people in a garage can have when they were starting I think Steve Jobs and Steve Wozniak so I think very inspirational and I admire a lot of them. और अगर मयूर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो आप क्या होते? कोई सेकंड ऑप्शन था आपके पास? Second option, I think I would have been a designer or a painter or an artist, उस type से, उस field में. Something related to that, something related to art. So I enjoy that a lot. And अभी भी मैंने अपने free time में कुछ design वगैरह करता हूँ. I've never kind of published it, but बहुत मजा आता है. So when it comes to UI UX design वगैरह वहाँ पर भी I have this keen interest, but more towards something to do with art and combining art, business and economics. अगर मुझे कभी chance मिलता है, I would want to do that. Yeah. और लाइफ फिलॉसफी यू लिव विद, या कोई ऐसा लाइफ का मोटो है जो जो आप बिल्कुल फॉलो करते हो? हाँ, बिल्कुल. So I have this life motto where I've decided that I'll work on ideas that shift paradigms, right? I want to think 10x, right? And I want to invest in health and relationships and then enjoy the journey. है ना? तो in short, this is it. So इस पर मैंने काफी सोचा है. I've even written a blog about it. है ना? Purpose of Life by Mayur Mudra. Google it. है ना? तो उस पर I've done this thinking वगैरह काफी मैंने सोचा है कि क्या रहना चाहिए. But definitely I'm not there yet in terms of कि ऐसा नहीं कि life purpose मिल गया है sort of. I feel कि this is the goal at the moment right now, and I think it keeps changing year on year. वो change होता रहता है. हाँ, तो मयूर अब बात करते हैं आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में। आप अ, Sure. मेरे को मालूम है कि आपने पहले भी काफी, जब आप कॉलेज में थे आईआईटी मद्रास में, तो आईआईटी मद्रास तक की आपकी जर्नी कैसी थी? आपकी लिंक्डइन बायो भी काफी फैसिनेटिंग है, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि 12th तक आपने वो किया जो आपके पेरेंट्स चाहते थे। फिर आपने इंजीनियरिंग में वो किया जो थोड़ा बहुत आप चाहते थे, थोड़ा बहुत सोसाइटी चाहती थी, और फिर आपने Right. 7 साल से आप वो कर रहे हो जो आप चाहते हो। तो ये जो जर्नी है, ये थोड़ी-सी बता सकते हैं? Right. So I think initial days में formative years में जो रहते हैं, right, adolescence and that, I think उसमें predominantly सबका वैसे ही रहता है. I think some of us यानी mature quickly or grow up quickly, right, and a lot of very young entrepreneurs who are say managing companies of like $1 billion plus, जैसे Ritesh Agarwal है, Zuckerberg. I think these people do that quickly, but I think most of the times in majority of the cases बहुत बाद में पता चलता है कि what is it that you really want to do.
एंड आई डोंट मीन दैट इन अ क्रिएटिव वे कि सोसाइटी ये चाहती थी इसलिए मैंने ये किया या मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स करवाई कुछ करने के लिए, नॉट इन दैट वे, इट्स मोर लाइक कि आई जस्ट फॉलोड व्हाटएवर आई फेल्ट, आल्सो आई वाज आल्सो फेल्ट कि ये सही है, एंड पेरेंट्स ने ये बोल दिया, तो सिंस आई डिड नॉट हैव माय ओन वेरी ओपिनियनेटेड आंसर ऑन कि व्हाट आई वांट टू डू, तो आई जस्ट थॉट कि चलो आई माइट एज वेल डू व्हाट दे आर टेलिंग, right? And that is how it started. So, and I think a lot has to do with how, यानी तुम्हारी upbringing कैसी है, तुम्हारे आसपास क्या है. So जैसे we were in a joint family, right? My brother, he's super intelligent. I consider him myself and more intelligent than me. And so मेरे जो cousin brother है सागर मुंदड़ा, right? So he used to top in school and college, and वो मेरे inspiration थे. So after fifth standard यानी मैंने उनको उनके footsteps पे चलना चाहता था. All teachers used to tell me, देखो सागर ऐसा कर रहा है, he was like 2 years elder to me, राइट? एंड आई थॉट यार मैंने भी करना चाहिए. तो पहले मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, देन इमीडिएटली आई आल्सो स्टार्टेड रैंकिंग इन क्लास, एंड देन इन दी अच्छा ये मुंदड़ा ब्रदर्स है, तो ये लोग काफी यानी अच्छा करते हैं पढ़ाई में, काफी अच्छे हैं. एंड देन उसके बाद आई नेवर लुक बैक इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. तो एकेडमिक्स में ऑलमोस्ट थ्रू आउट माई स्कूल यानी मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आता था, राइट? बट देन पेरेंट्स ने काइंड ऑफ मोटिवेट किया कि देखो आईआईटी जाओगे तो ये होगा वो होगा, एक बहुत ही टफ एग्जाम है, एंड इट फाइनली बिकेम लाइक अ गेम, है ना? लाइफ इज अ गेम मेरे को लगता है कभी कभी, एंड इट बिकेम लाइक कि चलो एक चैलेंजिंग टास्क है ना, जेई क्रैक करना, है ना? सो मेनी पीपल, 14 लाख पीपल आई थिंक सेट एवरी ईयर, राइट? एंड उसमें से तुम्हें अगर 0.1% में आना है तो इट्स अ गेम, इफ यू विन तो इट्स तुम्हारी लॉटरी लग गई, सब लोग ये कहते थे, राइट? एंड वो पैशन था, एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो दैट इज वेयर आई थिंक बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आई थिंक चाइल्डहुड में जो आते हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहते, राइट? तुम्हारी अपब्रिंगिंग, सोशल कंडीशनिंग, वो सब के अराउंड रहता है. या होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Yeah. तो क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि जैसे आप आईआईटी में चले गए, तो वो आईआईटी एक तो प्रेस्टिजियस कॉलेज है बहुत, और आईआईटी में जाने के बाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा चांसेस होता है कि आपका फ्यूचर, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो राइट. आपने पर आईआईटी में जाने के बाद भी आपने, वो कहते हैं ना कि कॉलेज में जाने के बाद भी आप सेटल नहीं हुए, आप हाथ पैर मारते रहे, मतलब आपने कॉलेज में भी स्टार्टअप करने की कोशिश करी। राइट. मैं तो राइट. वो सो तो वो आपको क्यों लगा कि आपको मतलब कुछ और भी ट्राई करना है, और फिर वो कैसे स्टार्ट हुआ, जो आपने स्टार्टअप की कॉलेज so so actually that is who I am. I have always hustled, है ना? तो वो तो आई थिंक कि वो काइंड ऑफ कोर डीएनए में है मेरे कि आई कांट सेटल, है ना? तो मैं सेटल करने के लिए वो तो मुझे कोई भी चीज में अगर मैं यानी करने लगता हूँ, तो वेदर इट इज डिजाइन, वेदर इट इज यानी बिल्डिंग अ स्टार्टअप, और वेदर इट कम्स टू इवन रेसिंग और अ सिंपल स्पोर्ट्स, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैंने ऐसा कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट, है ना? व्हाट नेक्स्ट, ऐसे व्हाट नेक्स्ट वाली फीलिंग बहुत आती है, राइट? एंड so that has always been my core nature, I think. तो core nature किसी इंसान का change करना बहुत hard है ना? Of course यानी you can change that, but it's very hard. तो but given that core nature, even after I went to IIT, मैं बहुत बार ऐसे secretively, even now I feel like settling down, है ना? That is like the other side of me where I feel कि यार बस हो गया, ये कितनी भागदौड़ करोगे, because of course जब तुम भागदौड़ करते हो, lot of wear and tear happens, right? A lot of burning out happens. तो जब IIT में भी गया तो already थोड़े burned out थे, जेई प्रिपरेशन फेज वगैरह, तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत रिलैक्स किया, राइट? सो दैट वाज लाइक अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम. एंड बट मेरे जो 3 फ्रेंड्स थे, हम टोटल 4 4 लोग थे, है ना, इंक्लूडिंग मी. एंड जो मेरे 3 फ्रेंड्स थे, तो उन तीनों की सीजीपीए मेरे से ज्यादा आ गई, राइट? दैट वाज लाइक अ शॉकर टू मी कि शिट यार मैं शायद बहुत पीछे गिर रहा हूँ, है ना? एंड नॉट फ्रॉम अ जेलसी एंगल और एनीथिंग, बट इट वाज मोर लाइक यार शिट, मैंने तो ये लोग भी मेरे साथ उतना ही खेलते थे, ये करते थे, बट मेरी मेरी यानी सीजीपीए इतनी कम कैसे हो, and I think I scored something like 7.3 percentage में, तो I wasn't very happy with it, तो मेरे को थोड़ा झटका लगा. And then I met a lot of seniors, तो seniors ने बोला कि यार देखो जॉब अगर चाहिए आईआईटी में, राइट? तुम ऐसा नहीं कि आईआईटी आ गई तो जॉब गारंटीड है, राइट? बट वही है कि तुम आईआईटी चले जाते हो, अब तुम्हारा नेटवर्क चेंज हो गया है, अब तुम वहां पर भी जाके तुम रैंक करने की सोचोगे, राइट? अगर अब तुमने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया तो हर बार तुम्हारा सर्कल चेंज होते रहता है, सो रिलेटिवली यू ऑलवेज वांट टू बी एट द टॉप, बिकॉज दैट इज हु यू आर, है ना? यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव, यू आर, अगर तुम्हारे डीएनए में वो है तो वो वैसा ही रहता है, राइट? तो फिर आईआईटी में जाने के बाद भी वही हुआ कि व्हेन आई आस्क्ड अराउंड सीनियर्स, तो सीनियर्स ने बताया कि यार देखो सीजीपी अगर तुमने खराब कर ली तो भूल जाना, कोई अच्छी कंपनी मिली है ना? तुम्हें कोई नीचे नीचे की कंपनीज मिलेगी. मैं बोला यार शिट, ये तो खराब हो गया. तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड सेमेस्टर से ऑलमोस्ट यानी हमेशा 8 के ऊपर ही रखी सीजी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी 9 प्लस भी लेके आया, राइट? एंड देन आई रियलाइज कि अरे शिट, सीजीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो किया. बट एट द सेम टाइम ऐसा था कि अब अगेन गोइंग बैक टू माय चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में इट हैज ऑलवेज बीन माय डैड, माय अंकल हु हैव लाइक इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट समथिंग, यू नो, स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, लाइक अ बिजनेस, नॉट इवन अ स्टार्टअप. में? एंड उसकी वजह से आई थिंक आई हसल्ड अ लॉट इन आईआईटी. वो तो पापा हमेशा ये कहते थे क्या कर रहा है, तो मैं कहता था पढ़ रहा हूँ. एंड पापा बोलते थे क्या हो जाएगा पढ़ के, है ना, कुछ स्टार्ट कर, राइट?
है ना, क्या नौकरी करेगा क्या, लाइक ऐसे ये डायलॉग बहुत फेमस था कि क्या नौकरी करेगा, है ना। तो ये सो आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बैकग्राउंड, राइट, सो अ लॉट ऑफ डिनर टेबल डिस्कशंस हैपन अराउंड दैट कि कौन कितना कमाता है, कौन कितना यानी पैसे बना रहा है, राइट। एंड उसकी वजह से भी आई थिंक वो ट्रिगर हमेशा सबकॉन्शियसली रहता था कि यार आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू स्टार्ट ऑन माय ओन, वरना घर पे तो कोई इज्जत ही नहीं देगा। राइट, अगर मैं उन्हें बोल दूं कि मेरे को डे वन कैंपस में जॉब भी लग गई तब भी बोलेंगे यार ये तो नौकरी है। राइट, ये तो किसी की कंपनी में काम कर रहा है, राइट। सो एंड ऑल ऑफ दैट इज वेरी फनी, आई डोंट बिलीव इन दैट फिलोसफी कोई जॉब कर रहा है तो कोई नौकर है एंड ऑल ऑफ दैट, बट एंड अ लॉट ऑफ दीस डिस्कशंस जो तुम्हारे फैमिली सेटिंग में होते हैं, राइट, ऑल लॉट ऑफ दैट आई थिंक इन्फ्लुएंस, तो वो इन्फ्लुएंस बहुत हुआ है, उसकी वजह से आई थिंक आईआईटी में भी आई हैड दिस थिंग कि यार आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, है ना। कुछ ना कुछ हसल करते हैं, वो हसल करने में फिर जर्नी में इतना मजा आने लगता है कि अरे चलो यार ये करते हैं, वो करते हैं, ये किया ट्राई, चलो यहाँ से पैसा बनाया, वहाँ किया, फिर वो किया, वो डील क्रैक हो गई, है ना, किसी तुम इंटरेस्टिंग लोगों से मिले, तुमने अपने को फाउंडर को कन्विंस किया, तो वो पूरी जर्नी में ही फिर बहुत मजा आने लगता है, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक अ ड्रग, राइट। एंड करंटली आई वुड से आई एम एडिक्टेड टू दैट ड्रग। मैं छोड़ नहीं सकता इस चीज को, है ना, वो लेवल एडिक्शन हो गया है टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ऐसा है। तो आप उन स्टार्टअप्स के बारे में बता सकते हैं थोड़ा-थोड़ा जो आपने उस टाइम कॉलेज में अपने स्टार्ट किए अपने फ्रेंड के साथ और वो फेल हो गए और वो फेल क्यों हो गए? श्योर, सो यानी सो वन स्टार्टअप वाज कि हमें कॉलेज के अंदर एक प्राइवेट यानी ब्रॉडकास्टिंग रेडियो और एफएम स्टेशन यू कैन से वो स्टार्ट करना था, राइट। एंड वी गॉट दिस आइडिया ओवरनाइट, मैंने मेरे रूममेट से डिस्कस किया, आई कन्विंस्ड हिम टू बिकम माय को-फाउंडर, राइट। एंड आई थॉट कि हम नेक्स्ट डे जाके बात करते हैं एफएम वाले से, कौन है, मैंने चेन्नई बस गूगल किया, वहाँ पे एड्रेस आ गया, तो हमने बोला चलो जाते हैं, बात करते हैं, हमने बात कर ली। एंड वो काइंड ऑफ यानी इन अ वेरी फनी वे इट वाज यानी वर्किंग आल्सो रियली वेल टू आवर फेवर, हमें लग रहा था कि of course there's a lot that goes into building it finally and launching it, but तब the way discussions were going we were like अरे यार ये क्या हो रहा है, ये the guy at radio FM जो था, he was like the head of Chennai and वो हमसे बात कर रहा है, he was also very passionate, यार ये दो स्टूडेंट्स आ गए सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड ये आके हमसे बात कर रहे हैं, they also got very excited with the value prop। एंड अभी हमने सोचा कि बस हमें हमारे डीन से बात करनी है, ये डील हो गई तो इंडिया का फर्स्ट यानी रेडियो स्टेशन टाइप कुछ स्टार्ट हो जाएगा, नॉट इंडिया फर्स्ट, यानी एक दो कॉलेजेस कुछ कर रहे थे, बट इट वाज मेजरली लाइक ऐसा कोई इनिशिएटिव कहीं अदरवाइज किसी कॉलेज में लिया नहीं था, एंड यूएस में दिस वाज वेरी कॉमन, है ना। एंड फॉर अस इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर कि यार ये तो रहना ही चाहिए, हर कॉलेज में अपनी एक्टिविटी होती है, हर कॉलेज में अपना ही यानी क्या कहते हैं इवेंट्स चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ यानी गॉसिप चल रही होती है, राइट। तो पूरा यानी तुम रेडियो के ऊपर यानी ये सब चीजें कर सकते हो, वो कॉलेज के लोग देखेंगे, दैट इज व्हाट यू वांटेड, राइट। बट एवरीबॉडी इज अटैच्ड टू दैट कॉलेज नेटवर्क, तो उसके बाद क्या हुआ कि माय co-founder was more like an influenced co-founder, right? And he said कि यार अभी एंड सेमेस्टर आ रही है, देख मेरी सीजीपीए तेरी इतनी अच्छी नहीं है ना, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो मैं अभी ये नहीं कर सकता, इसको पार करते बाद में करते। एंड जैसे ही उसने ये बोला, मैंने भी ज्यादा लाइट लिया, मैंने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, मैंने बोला यार ठीक है यार चल बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, वो हमने बंद कर दिया, राइट। सो दैट इज हाउ इट शट डाउन, राइट। सो वी डोंट नो वेदर द आइडिया वाज गुड, हमने कभी लॉन्च नहीं किया मैंने ऑफिशियली उसे, एंड बट ऐसे करके हसल कर लिया था, है ना, वी हैड वेंट अराउंड मेट पीपल, कुछ मैंने बना भी लिया था, यानी कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे कि इस टाइप से एमओयू वगैरह होगा होगा तो, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। दिस वाज द फर्स्ट वन, द सेकंड वन वाज अ लिटिल मोर सीरियस यू कैन से, है ना। तो सेकंड वाले में द प्रॉब्लम आई हैड आइडेंटिफाइड वाज आई वाज माय सेल्फ लर्निंग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, है ना, मैं बाहर जाके सीख रहा था, लाइक कॉलेज से बाहर जाओ, एंड ऐसे कुछ वर्कशॉप्स होते थे, दे यूज्ड टू चार्ज सम 4000 टू 8000 पर वर्कशॉप, यानी कुछ अच्छी अच्छी यानी फैंसी होटल्स में होता था, राइट। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार इतनी सारा फैंसी होटल में रख दिया, इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं 2 दिन का, साला 4000 से 10000 के बीच में, है ना, कांट यू टारगेट टू स्टूडेंट्स, है ना। तो आई वाज द ओनली स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हु यूज्ड टू अटेंड these kind of things, उन वर्कशॉप्स में यूजुअली थोड़े ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, है ना। तो मैं सोचता था कि यार स्टूडेंट्स को अगर चार्ज करना है साला 300-400 रुपए, तुम ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते, राइट। एंड बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड वांट टू पार्टिसिपेट, तो आईआईटीज में इंटरेस्ट काफी था, तब फाइनेंस में अभी भी आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एनालिटिकल थिंग, बिकॉज कंपनीज कम ऑन कैंपस, तो बहुत लोगों को कीड़ा है कि हम फाइनेंस में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएंगे या प्राइवेट इक्विटी में, व्हाटएवर, राइट। तो वो करने लगा, तो मुझे एक क्लियर प्रॉब्लम लगी, मैं बोला हम 1/10 ऑफ द कॉस्ट में, है ना, वो अगर बाहर 4000 में कर रहे हैं, 8000 में कर रहे हैं, हम मेरे 400 में 800 में कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, that was the idea. So it was basically in one line basics of stock market for college students, right? इसके learning workshops है ना, and we charge these people, ये workshop में आएंगे ऐसा करेंगे, तो that is how it started। वहाँ पे मेरा एक बैचमेट ही था मेरी ब्रांच का, this time not my roommate, and he was also convinced किया चलो ये करते हैं, एंड हमने कपल ऑफ वर्कशॉप्स की भी एक अन्ना यूनिवर्सिटी में, और एक आईआईटी मद्रास के अंदर ही यानी एक जो हमारा टेक्निकल फेस्टिवल होता है उसके अंदर शास्त्रा के अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया था, एंड वी हैड गॉटन इट स्पॉन्सर्ड आल्सो बाय फ्यूचर्स फॉर जो एक ट्रेडिंग कंपनी, राइट। एंड वो थोड़ा बहुत यानी पैसा भी बना, बट उसमें देन आई थॉट यार ये स्केलेबल नहीं है,
इसको स्केलेबल बनाना है, तो हमने ना ऐसे कुछ नहीं, तब सीडी वीडी भी चलती थी, तो हमने बोला सीडी वीडी में डाल के एक एनिमेशन वगैरह एक सिंपल फॉर्मेट में ना कुछ ऐसे कार्टून वगैरह एनिमेट होके आ रहे हैं और वो स्टॉक मार्केट समझा दे रहे हैं, हमने अगर वो सीडी टाइप में भेज दिया, राइट, तो ये तो कोई भी फिर कभी भी बैठ के घर बैठ के भी देख सकता है, एंड विल कीप द कॉस्ट अगेन वेरी लो, वेरी चीप, अगेन हमारा टारगेट सेगमेंट भी स्टूडेंट्स वगैरह, तो हमने क्या किया कि एक हिंदू के अंदर, तो हिंदू न्यूज़पेपर जो है, राइट, वहाँ पे जो कॉमिक्स वाला सेक्शन आता था, वहाँ पे हमें वो कॉमिक्स बहुत अच्छे लगते थे, है ना, तो मैं बोला कि इनको अप्रोच कर, है ना, एंड इनसे हम आर्ट बना लेंगे, एंड कोई हमें इसको डेवलप करा देगा, एनिमेशन वाला एनिमेशन एजेंसी को दे देंगे, तो उसके एनिमेटेड वीडियोस बना देंगे, and वो सब भी हमने कर लिया, वो पूरे वीडियोस बना दिए मैंने, अभी तो उसको फ्रेम करके रखा है, मेरे को तो बड़ी हंसी आती है वो देख के, राइट, बट हमने एनिमेटेड वीडियो तक पहुंच नहीं पाए उसमें बेसिकली वी डिड अ कपल ऑफ वर्कशॉप्स, एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि अगेन माय कोफाउंडर टोल्ड मी कि ही वांट्स टू सिट फॉर कैट, है ना, एंड उसका बीटेक था 4 ईयर प्रोग्राम, मेरा ड्यूअल था 5 ईयर, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा हम अलग अलग ट्रैक पे भी निकलने शुरू हो गए थे, एंड ही टोल्ड मी कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर कैट, तो भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, राइट, अगेन मैंने ही टोल्ड, तो मैं बोला इस बार मैं थोड़ा अकेला पुश करता हूँ, तो मैंने थोड़ा अकेला भी किया, बट देन मैं भी थोड़ा भटक गया, देन आई थॉट यार छोड़ यार, ये मेरा भी 3rd ईयर आ गया था, राइट, एंड मैं बोला मैं भी प्लेसमेंट्स एंड फाइनेंस पे फोकस करता हूँ, मुझे फाइनेंस एज अ फील्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा था, एंड उसके बाद आई मेड माई ड्रीम की यार मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, उसके लिए फिर यानी देयर वर दीस एग्जाम सीएफए एफआरएम एंड ऑल ऑफ दीस, तो मैं बोला यार ये सब मैं करूंगा तो फिर स्टार्टअप वार्टअप के लिए तो टाइम मिलेगा नहीं, तो मतलब पहले ये करते हैं, जॉब लेते हैं, फिर स्टार्टअप बाद में करेंगे, तो फिर मैंने वापस शट डाउन कर दिया, दैट इज हाउ दीस टू स्टार्टअप्स ने हैड टू शट डाउन एंड हैड टू गो ऑन। और आपको जॉब मिली भी थी, और काफी मतलब इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज है जेपी मॉर्गन चेज में, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की जॉब मिली भी थी, फिर राइट, आपने वो सेटल्ड जॉब, इतनी अच्छी जॉब, वो छोड़ी क्यों? राइट, सो एक्चुअली मैं पहली जॉब तो डेलॉइट में लगी थी कैंपस से, है ना, हम्म। दैट वाज मोर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग, है ना, वो बॉम्बे में थी, एंड मुझे बॉम्बे स्पेसिफिकली लोकेशन चाहिए था बिकॉज मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ऑफ कैंपस अप्लाई करना था, आई वाज वेरी क्लियर कि मैं डेलॉइट तो इज लाइक जस्ट अ लॉन्च पैड फॉर मी टू गो फ्रॉम से चेन्नई टू बॉम्बे, राइट, एंड मैं वहां पे थोड़ा सर्वाइव कर पाऊँ, राइट, एंड उसके बाद आई थॉट कि आई स्टार्ट अप्लाइंग ऑफ कैंपस की फैशन फाइनेंस ही था, राइट, बट सो 4 मंथ्स में मैंने ऑफ कैंपस जब अप्लाई कर रहा था, तब जेपी मॉर्गन में एक सीनियर ने मुझे कनेक्ट कर दिया था, राइट, एंड जेपी मॉर्गन कैंपस में नहीं आता था, एंड प्लस वो उस टाइम पे यूरोजोन डेट क्राइसिस वगैरह की वजह से वो लोग कैंपस में, और भी जो कंपनीज थी नोमोरा वगैरह, वो कंपनीज भी नहीं आई थी, राइट, सो ऑफ कैंपस अप्लाई किया, फाइनली वो इंटरव्यू क्रैक हो गया, बट देन दे पुट इट ऑन होल्ड फॉर लाइक आई थिंक 2-3 मंथ्स, तो मैं बोला ये होल्ड वाली क्या चीज है, वो मेरे लिए शॉक था, राइट, एंड देन बट 2-3 मंथ्स बाद टू माय सरप्राइज उनका कॉल आ गया, दे सेड कि यार मयूर की तो हायर यू, है ना, फिर से इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने फिर से इंटरव्यू लिया राइट, एंड फिर से वो सब प्रोसेस वगैरह हुआ, देन दे फाइनली सेलेक्टेड, सो वंस आई गॉट इनटू जेपी मॉर्गन, तो तब मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि तब तक मेरा ये डिसाइड हो गया कि मैंने बिजनेस करना है ना, तब तक वो मेरा हो गया था कि यार ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहना, बट आई वाज अगेन वेरी क्लियर कि मुझे बिजनेस तो करना पड़ेगा, है ना, अगेन मोर टू डू विद आई थिंक हाउ माय वो जो फैमिली का इन्फ्लुएंस है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा था, एंड प्लस स्टार्टअप वो भी थी चल रही थी उस टाइम पे, आई थिंक इट वाज 2015, उस टाइम पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंड्स रेज किए थे आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स ने, राइट, तो वो सब बूम वगैरह देख के हाउसिंग.com टाइनी और ऑल दीस कंपनीज इनकी न्यूज आती थी, राइट, तो आई थिंक वो सब पढ़ पढ़ के मैं भी बड़ा इंस्पायर हो गया, मेरे को लगा यार ये सही टाइम है स्टार्टअप करने का, तो यही करना चाहिए, तो जेपी मॉर्गन में जाते हैं, सीखते हैं, कुछ ज्ञान व्यान लेते हैं, फिर वहां से निकलेंगे, राइट, एंड प्लान था कि एटलीस्ट 1-2 साल तो रहूंगा, राइट, बट द मोमेंट आई ज्वाइन मैंने देखा कि वहां पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो तो आई फेल्ट इट वाज लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स, यार ये क्या है, सब ब्लूमबर्ग टर्मिनल दे दिया, राइट, ट्रेनिंग वेनिंग चल रही है, बहुत ही कोर फाइनेंस, तो मैंने देखा यार इसका बिजनेस से ऐसा तो लेना देना ही नहीं है, प्लस आई वाज पार्ट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम, है ना, कुछ जने 7-8 लोगों की टीम थी हमारी, तो जिसमें इंडिया इंडिया के अंदर 2 लोग बैठते थे, मैं और जो मेरी इमीडिएट सीनियर थी, है ना, तो हम दोनों बैठते थे, तो मैंने देखा कि यार इसका बिजनेस से तो कोई लेना देना ही नहीं है, राइट, तुम वैल्यूएशन वैल्यूएशन ये सब कितना भी लगा लो, जितने भी मॉडल्स वगैरह समझ लो, राइट, इट हैज नथिंग टू डू विद अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, द ओनली वे टू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस इज बाय स्टार्टिंग, आई फील, है ना, या फिर तुम मैंने बहुत ही डेप्थ में रीड करो, अब रीडिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा, लाइक द वे वॉरेन बफे फॉर एग्जांपल डज अ लॉट ऑफ हिज इन्वेस्टिंग इज बाय रीडिंग, तो 95% ऑफ द टाइम ही एंड कार बस पढ़ते हैं, राइट, एंड मैं बोला यार मेरे को तो ना पढ़ने का टाइम मिल रहा है बिजनेस समझने के लिए, मेरे को तो ना यानी करने का टाइम मिल रहा है बिजनेस के लिए, तो मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं रहा, मुझे कुछ तो यानी फाइनेंस का इतना सारा जार्गन पता चला ना, ये रेट रेपो रेट इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक्स ये वो सब समझ रहा है, मैक्रो पे समझ रहा है वो भी, है ना, कि कंट्री की जीडीपी कैसे ये होती है वो होती है, एंड वैल्यूएशन मॉडल समझ रहे हैं, तो आई फील यार ये सब तो कुछ काम का ही नहीं है, राइट, एंड द मोमेंट आई हैड दिस एपिफनी कि यार ये सब कुछ काम का नहीं है, तो देन इट वाज अ नो ब्रेनर यार अब तो मेरे को छोड़ना ही चाहिए, है ना, so I feel it's not relevant to what I want to do, otherwise the company
the culture and even the opportunities that JP Morgan gave, I think वो बहुत अच्छे थे. तो most of them मैंने I think 2-3 years में उनके foreign locations पे चले जाते थे, है ना. मेरी जो immediate senior थी, उनको भी जब मैं था वहाँ पे 4 महीने में उनको कॉल आ गई थी लंदन टीम से. She was very happy. She's still in London, I think, है ना. And वो वहाँ पे चली गई थी. तो I think opportunity wise काफी अच्छा था. I think it just did not fit with my goals. तो आपको एम्बिशन बॉक्स का आइडिया करते हुए ही आ गया था जॉब, या फिर जॉब के बाद आया था? हाँ, सो करते हुए आ गया था, बट करते हुए एक्चुअली दूसरा आइडिया था. इट वाज़ मोर इनटू रियल एस्टेट एंड उसमें ना जो ब्रोकरेज वाला सिस्टम था वो बड़ा फनी लगता था हमें, स्पेशली सिंस मैं बॉम्बे में था तो रेंट वगैरह वाज़ वेरी हाई, राइट. एंड आई फेल्ट कि यार ये ब्रोकरेज इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था. इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू इवन अंडरस्टैंड यार 1 मंथ ऑफ ब्रोकरेज में तो तुम 12 महीने का रेंट दे रहे हो, उसमें 1 मंथ ब्रोकर को दे रहे हो. लाइक व्हाई दिस मच? है ना. एंड मैं देखता था ब्रोकर करता क्या था, तो जाके तुम्हें फ्लैट शर्ट दिखा रहे हैं, उसमें भी हमसे ये यानी वो बात अच्छी नहीं करता था. उसमें भी यानी ही वुड बी लाइक कि यानी हम यानी उसके पीछे-पीछे जा रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं. मैं बोला यार ये ब्रोकर इतना भाव भी खा रहा है और ऊपर से 1 मंथ ऑफ ब्रोकरेज ले रहा है, क्लियरली इनएफिशिएंट है सिस्टम. है ना. एंड आई थॉट कि इसे डिसरप्ट करते हैं. एक बहुत ही प्रोफेशनल ब्रोकरेज फर्म बनाएंगे, या तो ब्रोकर्स को हटा ही दो, है ना, एंड डायरेक्ट ही तुम यानी ओनर्स एंड इनको कनेक्ट कर दो, है ना. ऐसा कुछ आइडिया लेके स्टार्ट हुआ था. तो फिर मैंने वो नवी मुंबई रियल्टर्स एसोसिएशन पे मैंने कुछ एक एमवीपी टाइप बना के लॉन्च भी किया. तो वहां से मुझे फोन आ गया, तुम ऐसे ब्रोकरेज को डिसरप्ट नहीं कर सकते. सबको कंपलसरी है 1 महीना या 2 महीने का चार्ज करना, है ना. उन्होंने फोन ला के धमकी दे दी. तो मैं डर गया. मैंने बोला मेरे वहाँ पे मामा वगैरह रहते थे, तो मैं वो रिलायंस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है. मैंने उनसे पूछा यार मामा देखो ऐसे ऐसे हो गया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स. आई टुक एडवाइस फ्रॉम हिम. ही सेड कि देखो भाई रियल एस्टेट में बॉम्बे में तो यही चलता है ना. तब मुझे पता चला कि 50% ऑफ द फ्लैट्स या फिर इवन मोर देन दैट आर रन बाय दीज माफियाज इन मुंबई, है ना. तो मैं बोला यार ये तो मैंने कौन सा सेगमेंट पकड़ लिया, इट इज वेरी हार्ड, है ना. तो मैं बोला ये विदाउट फंडिंग विदाउट एनीथिंग, है ना, बूटस्ट्रैप करके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मैंने वो भी फिर इमीडिएटली स्विच कर लिया. तो आई डिड नॉट इवन लॉन्च द वेबसाइट. मैंने उससे पहले ही यानी वो बंद करके आई हैड टू स्विच. बट व्हाइल आई वाज एट जेपी मॉर्गन ऐसे दो तीन आइडियाज थी. उन दो तीन आइडियाज की बेसिस पे क्विट किया. एम्बिशन बॉक्स आल्सो वाज वन ऑफ देम. बट फिर जब मेरा रियल एस्टेट बंद हुआ तो देन आई वेंट इनटू मेडिकल फील्ड. फिर मेडिकल वाले में मेरे डैड जो डॉक्टर ही है, तो उनके मैंने क्लिनिक्स वगैरह लिए, मेरे डैड एंड अंकल के. एंड आई थॉट कि इन्हें मैं एक्सपांड करूंगा. द प्लान वाज कि इनके ऑलरेडी 6 क्लिनिक्स है. मैं बोला इनको 50 क्लिनिक्स करते हैं, अ गुड यानी टारगेट टू हैव, राइट. एंड दो तीन क्लिनिक्स हमने लॉन्च भी किए, एंड दे वर प्रॉफिटेबल आल्सो फ्रॉम मंथ 1, राइट. बट उसमें वो प्रॉब्लम हो गई थी कि उसमें सब कुछ सही था, उसमें मैं अकेला था. आई वाज लाइक द ओनर देयर, है ना. बट थोड़ा सेठ टाइप वाली फीलिंग आ रही थी, है ना. तो ऐसे सेठ एडमिन टाइप का है जो रहता है ना कि ये करो वो करो, है ना. एंड वो देखो उस क्लिनिक का फैन बराबर चल रहा है नहीं, राइट. उस क्लिनिक में बराबर से यानी वो रिसेप्शनिस्ट बात कर रहे हैं नहीं फोन पे, है ना. बीच बीच में थोड़ा राउंड मार लिया, चक्कर मार लिया, राइट. तो मैं बोला यार ये क्या कर रहा हूँ मैं. तो इसके लिए तो मैंने आईआईटी किया, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का है भी नहीं, राइट. तो ऐसे कुछ काइंड ऑफ है मजा नहीं आया, राइट. एंड प्लस उस टाइम पे वो लोग, अब तो अगर इफ यू आस्क मी तो उसके अंदर भी काफी सारी टेक चीजें यानी तुम डाल सकते हो, एंड यू कैन यूज टेक्नोलॉजी रियली टू स्केल दैट अप. बट उस टाइम पे द इंटरनेट वाज आल्सो वेरी पुअर. मैंने सब ना सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए. मैं बोला मैं घर पे बैठ के देखूंगा सारे क्लिनिक्स में क्या हो रहा है, ऐसा वैसा. बट मजा नहीं आया, कुछ भी मजा नहीं आया. तो आई गॉट वेरी बोर्ड, है ना. प्लस देयर वाज नो को-फाउंडर. पता नहीं मैं शायद पार्टनर भी मिस कर रहा था. यार कोई तो चाहिए जो बात बात करे. बट सरप्राइजिंगली द बिजनेस वाज रियली गुड, है ना. डैड अंकल ने मेरे 30 इयर्स में ऐसा एक बिजनेस तो बना दिया था कि जो मैं इम्प्लीमेंट करूँ ना, इट वाज वेरी स्केलेबल, है ना. उन्हें सारा कुछ पता था कहाँ यानी क्या करना है, कि जहाँ से पेशेंट आएंगे, कौन से लोकेशन पे क्लिनिक खोलनी है. तो वो सब कुछ हार्डशिप देखी नहीं है, बड़ा इजी भी लिया वो, राइट. सो देन आई थॉट यार ये बड़ा बोर हो रहा है यार, कुछ चैलेंजिंग करते हैं. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार इंसान को ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छा बिजनेस मिला, राइट. एंड तुमको प्रॉफिट भी आ रहा है, लाइक मंथ वन से आ रहा है तुम्हें, है ना. तुम ब्रेक में हो जा रहे हो 3 मंथ्स में, तो भी तुम्हें यानी इट माइट नॉट सेटिस्फाई यू, है ना. सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग कि वो जर्नी तुम क्या बना रहे हो वो सब भी मैटर करता है. सिर्फ पैसा या कौन सा बिजनेस है वो ही मैटर करता है, राइट. सो देन आई रियलाइज कि चलो I'll have to start something on my own only, you know, and it has to be in technology, something to do with technology. Then I launched My Ambition Box. So it was the name was My Ambition Box at that time. फिर हमने एक आध साल बाद डोमेन एम्बिशन बॉक्स में भी कर लिया था. बट दैट इज हाउ माय एम्बिशन बॉक्स एंड एम्बिशन बॉक्स की जर्नी स्टार्ट हुई. तो अब एम्बिशन बॉक्स की बात करते हैं. जिन्हें एम्बिशन बॉक्स का आइडिया नहीं, एम्बिशन बॉक्स इज अ naukri.com एक्वायर्ड स्टार्टअप, जिसमें रिव्यूज होते हैं कंपनी के, इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, और बेसिकली अगर जो भी कोई भी है जिसे जॉब सर्च करनी है तो वो पहले एम्बिशन बॉक्स पे जाता है, जिससे कंपनी के बारे में पता चल जाए, इंटरव्यू के बारे में पता चल जाए, एनवायरनमेंट के बारे में पता चल जाए. मतलब ज्यादातर सारी कंपनी को ही होता है उस पर. तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि ये करना चाहिए और ये अच्छा आइडिया? सो द फनीस्ट बिट इज कि जब मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था,
राइट एंड उस टाइम पे मैं देखता था अपने आसपास जो लोग फोन यूज कर रहे हैं वो सब लोग एवरी इन एवरी मॉर्निंग दे यूज्ड टू ओपन देयर जीमेल है ना, एंड जीमेल में जो जॉब अलर्ट्स आते हैं वो बहुत दिखते थे मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, एंड ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दिया है ना, एंड ऐसा यानी मैंने काफी बारी देखा, तो मैं बोला यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, राइट एंड जहाँ पे एवरीडे लोग उठ के सुबह जॉब्स देखते हैं वगैरह, मैं बोला यार ये नौकरी, तो नौकरी एज अ प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही खराब लगता था उस टाइम, है ना। आई थॉट कि यार ये क्या प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी इसकी डिजाइन अच्छी नहीं है, इसका ये नहीं है वो नहीं है, वो तो गलतियां निकालने के लिए तो इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म की कितनी गलतियां निकाल सकता है, राइट। तो तो मैं बोला यार ये बड़ा अच्छा है यार, मैं इससे बेटर बनाऊंगा, है ना, एंड द प्लान वाज टू डिसरप्ट नौकरी, ठीक है, दैट वाज द प्लान एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, राइट। तो मैंने बोला, and हम जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो चिकन एक प्रॉब्लम है, मैं जॉब्स कैसे करूँ डे वन से, जब कंपनी जॉब डालेंगी नहीं, जब तुम्हारे पास यूजर ही नहीं है वेबसाइट पे, तो कंपनी जॉब्स क्यों डालेंगी, एंड यूजर आएंगे नहीं जब तुम्हारे पास जॉब्स नहीं है। मैं बोला यार ये तो क्लासिक चिकन एग में फंस गया मैं। अब मैं बोला पहले कहाँ से क्या लाया जाए, राइट, वहां से एक्चुअली कंटेंट वाला गेम यानी स्टार्ट हुआ कि हमने सोचा कि यार कौन सी ऐसी चीज है कि जो जॉब सीकर पढ़ने आएगा ही आएगा, है ना, एंड फिर जॉब सीकर आ जाएगा तो फिर हम कंपनीज को लेके आ जाएंगे। तो चिकन एग में पहले हमने बोला कि चिकन हमारा जो है दैट इज द कंटेंट, राइट, एंड हम अगर कंटेंट लेके आ जाते तो फिर हम जॉब सीकर्स को भी लेके आ जाएंगे एंड फिर ऑल ऑफ दैट विल फॉलो, राइट। दैट इज हाउ वी वेंट इनटू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सो दैट इज वेयर वी स्टार्टेड विद इंटरव्यू क्वेश्चंस। जिन लोगों ने क्रैक कर दिया इंटरव्यू, राइट, उन लोगों को हम बोलते थे यार तुम पोस्ट करो यहाँ पे, राइट, अपनी पूरी एडवाइस डिटेल में शेयर कर दो, क्वांटिटी पे नहीं। हमने बोला कि यार क्लास तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आईआईटी मद्रास में जब मैं कॉलेज में था एक ब्लू बुक करके कुछ फेमस थी जहाँ पे वो सर्कुलेट होती थी, जिसमें सारे सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपना सारा ज्ञान दे देते थे कि भाई देखो प्लेसमेंट में अगर अमेरिकन एक्सप्रेस आ रही है तो वहाँ पे उसने क्या क्या सवाल पूछे, कहाँ से तुमने प्रिपेयर करना है, क्या क्या वीडियोस कोर्सेज, सारा एकदम डिटेल में, एज इफ जैसे बाजू में बैठ के अगर तुमने किसी को गाइड किया ना, वैसा टाइप वाला रहता था वो। तो उसमें अमेरिकन एक्सप्रेस में भले 6 लोगों की जॉब लगी हो, एक ही सीनियर लिख देता था, पर वो इतना यूजफुल रहता था कि कोई ग्लास डोर वगैरह कहीं और जाता ही नहीं था, राइट। सो दैट वाज द इनसाइट, यार क्वालिटी बहुत ही मैटर करती है। तो हमने वही किया। तो अभी जैसे सबसे कॉमन प्रोफाइल ना टीसीएस के अंदर सिस्टम इंजीनियर थी, जहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है इवन जो हायरिंग वायरिंग के टर्म्स पे। तो हमने बोला यार इस प्रोफाइल के ना हम यानी 3-4 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एकदम डिटेल में भरवा लेंगे। तो बहुत लेंदी फॉर्म बनाया हमने, है ना, एंड हमने लेंदी फॉर्म कोई तभी भरेगा जब तुमने फोन लगा के उसे कन्विंस किया हो, है ना, कि यार प्लीज भर दे यार ये फॉर्म, यानी बहुत ही हेल्पफुल हो गया बाकी जॉब सीकर्स को, राइट। तो हमने ऐसे करके सील करना शुरू किया कंटेंट, एंड वो क्वालिटी फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि यार टीसीएस सिस्टम इंजीनियर के हमारे पास 3 ही है, ग्लासडोर के पास 300 रहेंगे, और हमारे वो 3 भी ग्लासडोर के 300 से बेटर थे, क्योंकि वो तीन ही लोगों ने बोले खाली, and बहुत डिटेल में बोले। तो वो एक ऐसा स्टोरी फॉर्मेट में आ जाता था, राइट। एंड फिर हमने ऑलमोस्ट समझ लो 1.5 साल बस ये इंटरव्यू वाला काम ही किया। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस को ही हमने ग्रो किया, है ना, विद अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड अ लॉट ऑफ अदर ट्रायल्स, बट द कोर प्रोडक्ट वाज दिस। एंड ये इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आ गए तो वी रीच्ड विद जस्ट दिस प्रोडक्ट, यानी कुछ 1.5 टू 2 लाख यूजर्स पर मंथ आने लग गए। दिस इज लाइक जस्ट बिफोर एक्विजिशन, ऐसा है। तो फिर Naukri.com ने कैसे एक्वायर किया? राइट, सो वो भी यानी इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्विजिशंस यानी कोई ऐसे सोच के नहीं बनाता, बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटल होती है, एंड दिस वाज वेरी वेरी एक्सीडेंटल आई वुड से। तो हमारे दिमाग में एक्चुअली दूर दूर तक एक्विजिशन था भी नहीं। इंटरेस्टिंग बिट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एम&ए फंड रेजिंग ये सब इतना यूज करते हैं, वो तो मैंने इतनी बार ही सोचा था इंटरेस्टिंगली, लेकिन जब मैं ये स्टार्टअप बना रहा था मेरे दिमाग में कभी एम&ए आया ही नहीं। तो आई वाज सो नाइव एट दैट टाइम। तो मेरे दिमाग में तो ऐसी था कि यार इसको बनाना है, इसको ग्रो करना है, तो एक दिन आईपीओ करेंगे, राइट। सो इट वाज दैट फनी। तो दिमाग में एक्विजिशन कभी था ही नहीं, बट व्हाट हैपेंड वाज कि व्हेन वी वर ट्राइंग टू स्केल, इवन दो वी हैड रीच्ड 1.5 टू 2 लाख यूजर्स बाय हसलिंग अ लॉट, है ना, बाय डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, उसमें एसईओ ऑर्गेनिकली आ रहे थे विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम ऑन एडवर्टाइजिंग। वी रियलाइज कि यार अब जो नेक्स्ट लीप है, अगर 1.5 लाख से हमें इसको 5x करना है, 10x करना है, तो हमें जॉब बोर्ड्स की मदद तो लगेगी लगेगी, है ना, एंड हमें स्केल करना ही पड़ेगा। बट वहां पर भी हमें काफी रोड ब्लॉक्स आ गए। तो क्या हो गया, ऑन द साइड अगेन हमने क्या कर दिया कि यार ये आइडिया तो अच्छा है, हमें और भी 3-4 आइडियाज अच्छे लगने लगे, है ना। वी स्टार्टेड रोमांटिसाइजिंग एंड फैंटेसाइजिंग विद सम 2-3 अदर आइडियाज ऑन द साइड, है ना, मी एंड माय को-फाउंडर। एंड हमने बोला यार ये आइडियाज तो इससे बेटर लग रही है, तो एम्बिशन बॉक्स से भी बड़ा हो सकता है। एम्बिशन बॉक्स में हमारी कोई लर्निंग्स थी 1-1.5 साल की। हमने बोला यार ये भी स्टार्ट कर देते हैं साइमल्टेनियसली, एम्बिशन बॉक्स चलता रहेगा, ये भी चालू करते हैं। तो हमने एक स्टार्ट कर दिया, उसका नाम था lemonvideos.com, ठीक है। वो बनाया, उसमें हमने क्या की था कि उसमें ना यूट्यूब के जितने भी वीडियोस है उसमें से हमने क्वालिटी वीडियोस पिक किए हैंड पे। एंड उस टाइम पे वो स्टैंड अप टीवीएफ ये सब बहुत लॉन्च हो रहे थे, बहुत नए वायरल होती थी ये सब चीजें। तो हमने बोला यार इसका क्यूरेटेड कंटेंट रख देंगे वहाँ पे, है ना, एंड उसमें फिर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च किए। तो ये हमने कुछ 1 महीने में बहुत चीजें बना दी। 1 महीना फुल टाइम किया, लेकिन एकदम एम्बिशन बॉक्स को टच ही नहीं किया, वो कर दिया साइड में, राइट। बट एम्बिशन बॉक्स से तब हम डेफिनेटली थोड़ा डीफोकस हो गए, बट फिर भी ट्रैफिक बढ़ रहा था एम्बिशन बॉक्स में, बैठे बैठे बढ़ रहा है।
है ना, हम भी थोड़ा शॉक थे कि अरे क्या हो रहा है, ठीक है, बट हमने बोला नहीं नहीं यार, लेकिन ये दूसरी आइडिया और भी ज्यादा, एक और आइडिया हमें थी, है ना, वो आइडिया हमने अभी भी हमने स्टेल्थ मोड में रखी है, मैं अभी वो रिलीज नहीं करूंगा, लेकिन वो भी हम साइड में ऐसे बना रहे थे, राइट, एंड वो भी वो एक ऐप बेस्ड आइडिया थी, एंड उसमें हमने सोचा कि ये बनाते, तो वो हमने और भी सीरियसली की, तो लेमन वीडियो से ज्यादा और वो सीरियसली किया, उसमें भी हमने यानी कुछ कुछ यानी बना दिया, तो उसमें मैंने क्या किया, एक फाउंडर थे दिनेश गोयल, आसान जॉब्स के फाउंडर, राइट, एंड मैंने उनसे फीडबैक लेने, वो आइडिया पे फीडबैक लेने के लिए उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, राइट, एंड ही द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज कि यार एम्बिशन बॉक्स का क्या किया, एम्बिशन बॉक्स तो बड़ा सही चल रहा था, ये तो नई आइडिया आ गई, ये क्या, ये क्यों लॉन्च कर रहे हो, हमने बोला एम्बिशन बॉक्स में पता नहीं हम कैसे मोनेटाइज करेंगे, हमको पता नहीं है कैसे 5x 10x करेंगे, अभी ग्रोथ हो रहा है, बड़ा लीनियर है ऐसे, तो ही टोल्ड यार तुमने जो बनाया है एम्बिशन बॉक्स में, दैट इज रियली गुड एंड रियली हेल्पफुल, है ना, हैव यू गाइस थॉट ऑफ एन एक्विजिशन, तो हमने बोला हमने सोचा तो नहीं है, बट हाँ वी कैन थिंक ऑफ एन एक्विजिशन, है ना, नासा जॉब ने तब काफी फंडिंग वगैरह भी रेस करी थी, तो हमने उनसे भी बात करी, दिनेश यानी वो बॉम्बे में थे, तो उनसे आगे बात करी, उनसे भी काफी बात आगे तक बढ़ी, एंड फाइनली ऐसा हो गया कि बोर्ड ने काइंड ऑफ रिजेक्ट कर दिया कि अभी इस टाइम पे एक्विजिशन नहीं करनी है, तो उन्होंने आसान जॉब्स को बोला कि भाई पहले तुम एक्सपांड करो और दो तीन जो उनके माइलस्टोन थे वो उन्हें पहले रीच करना है बोला, एंड बोर्ड लेवल पे ही रिजेक्ट हो गया, दिनेश एज फार एज आई नो ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि हमने एम्बिशन बॉक्स खरीद लिया तो काफी हेल्प होगा वगैरह, प्लस एन एम्बिशन बॉक्स वाज अ स्मॉल स्टार्टअप इन द सेंस की जस्ट टू फाउंडर्स विद अ लॉट ऑफ इंटर्न्स, एंड ऐसे हम बूटस्ट्रैप करके चला रहे थे, है ना, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हैसल नहीं था, तो वो स्टेज पे थे हम, एंड उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि जैसे ही आसान जॉब से हमारी बात हुई, हमें रियलाइज हुआ यार शिट, हम सिर्फ आसान जॉब से क्यों बात कर रहे हैं, एक्विजिशन हम तो यार सबसे ही बात कर सकते हैं जितने भी प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में, देन इट स्ट्रक मी कि अरे शिट यार मैं तो भूल ही गया एक्विजिशन का, तो एक्विजिशन भी तो हम करवा सकते हैं कंपनी का, उसकी सेलर कंपनी, राइट, एंड देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग एवरीवन इन द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, है ना, जो भी हमें डायरेक्टली हमारे कल को हम जो उनको कॉम्पिटिटर समझते थे, कुछ समझते थे, मैंने बोला यार चलो इन सबसे बात करते, तो उस टाइम पे जो स्टार्टअप्स थे मैंने उनसे सबसे बात की, सारे फाउंडर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, लाइक यू नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग फॉर्म लाइक टीम लीज, केली सर्विसेज, ये सब थी, तो उनसे भी बात की, उनके इंडिया हेड से बात की, एंड लिंक्डइन, ग्लासडोर, इन सबको भी मेल किया, है ना, कहीं कहीं से रिजेक्शन आए, कहीं कहीं से ऑलमोस्ट सब लोगों ने बात तो कर ली थी, राइट, एंड उसमें वन ऑफ देम वाज नौकरी, राइट, एंड नौकरी में यानी द इंटरेस्टिंग बिट इज कि आई हैड टू मेल देम अ लॉट, आई हैड टू मेल देम 3 टाइम्स, जबकि मैं संजीव बिखचंदानी से पहले मिल चुका था, है ना, बट आई थिंक ऑफ कोर्स लाइक ही इज वेरी बिजी, राइट, एंड आई थिंक ही फॉरगॉट टू रिप्लाई अ कपल ऑफ टाइम्स, थर्ड मेल जब मैंने किया तो मुझे उनका रिप्लाई आया, राइट, एंड ही सेड कि व्हाई डोंट यू यू नो कम हियर एंड पिच अस द कंप्लीट प्रोडक्ट, राइट, एंड वी सेड व्हाई नॉट, है ना, तो वो दिल्ली बेस्ड थे, हम बॉम्बे बेस्ड थे, तो हम दिल्ली गए, एंड द डील वाज काइंड ऑफ डन इन अ डे, है ना, एक दिन में ही डील हो गई, तो दैट वाज वेरी फास्ट, एंड वी आल्सो हैड लाइक अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, आई थिंक व्हाट इन्फो हैज डन, इट्स लाइक फेनोमेनल, तो जो जिस टाइप से उन्होंने कंपनी बनाई है, आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, तो हितेश एंड संजीव, अरे अरे बहुत, अरे हम आइडलाइज करते हैं, एंड दे हैव बिल्ट लाइक अ कंपनी व्हिच टुडे इज वैल्यूड एट 5 बिलियन, जब हमने ज्वाइन किया था कुछ 2.5 बिलियन, राइट, एंड हमारे ज्वाइन करने के बाद ही वो तो ऑलमोस्ट डबल हो गया उनका वैल्यूएशन, एंड ऑल द प्लेटफॉर्म जिस टाइप से उन्होंने बनाए थे, तो तब हमने जब जाके देखा कि अच्छा शिट, दैट इज व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड naukri.com, एंड अंदर से भी कैसे फंक्शन करता है, राइट, हम तो बस यानी कुछ सम पीपल लाइक सम 20 year old यानी जस्ट थिंकिंग कि हाँ ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, राइट, बट वहां जाके बहुत सारे मिथ्स हमारे ब्रेक हुए, राइट, एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि शिट, एक मार्केट प्लेस बिजनेस बनाना तो बहुत ही हार्ड होता है, राइट, एंड we kind of then build that, है ना, started building ambition box, and acquisition वगैरह तो काफी जल्दी हो गया, तो luckily I would say कि काफी जल्दी हो गया, and plus the way Infosys का DNA, I think whatever they do, they are very clear, very founder friendly company, है ना, and उसके बाद भी the kind of freedom flexibility they gave us, right, वो भी काफी अच्छी थी, right, and hence I think that is one main reason कि we are still working with them, and still working with Hitesh and Sanjeev. तो क्लियरली जो लोग हमें सुन रहे और देख रहे हैं वो ये देख सकते हैं कि मयूर ने कितने सारे स्टार्टअप्स किए थे और उनके आइडिया ड्रॉप किए या नहीं चले या जो भी रीजन था, पर सक्सेसफुल एम्बिशन बॉक्स के बाद भी उन्होंने काफी चीजें ट्राई करी, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो Right, absolutely. तो मयूर, जब अभी भी आप जैसे एम्बिशन बॉक्स के बाद भी आपके और भी साइड हसल्स काफी सारी हैं, तो Right. उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? Right. So a lot of side hustles तो मैं पब्लिक में रिलीज भी नहीं करता, है ना, it's more like कि I just want to work on them because I'm just a little of a you can say I shy away from releasing something very fast, and मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या बना दिया, है ना, very मुझे ऐसा थोड़ा पिक्सल परफेक्ट डिजाइन एंड थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट, थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा हो तो रिलीज करने में अच्छा भी लगता है, बट या आई वुड से कि
यू लर्न अ लॉट, यू डू एनीथिंग, है ना, एंड यू लर्न अ लॉट। यहाँ पर भी तुम्हारी गट फीलिंग है ना, तो आई लाइक एक्सप्लोरिंग कि तुम्हें एक आइडिया आया कि यार व्हाई नॉट इफ आई कैन क्रॉल कंटेंट फ्रॉम हियर एंड बिल्ड दिस टूल जिसमें मैंने कुछ एआई एमएल लगा दिया एंड उससे कुछ ऐसे इनसाइट मिल गई, है ना, माइट बी दिस टूल इज हेल्पफुल टू दिस एक्सवाइजेड सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स और यूजर्स, राइट। तो देन आई थिंक यार मैंने ये कर देना चाहिए, है ना, तो बस वो कर देते फिर, यानी वीकेंड वगैरह को बैठे, राइट, एंड 2-3 वीकेंड में कुछ यानी बना के लॉन्च किया, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट, यानी yes, I'm working on a lot of side hustles, I still hustle a lot, right, but I'm not very happy with my speed, है ना, तो I expect more from myself, right, and मेरा एक ही objective है कि I should not become complacent by reaching somewhere। तो like for example ambition box has really worked for me, है ना, तो ambition box में like for example हम अरे बहुत बार मैंने even LinkedIn पे जैसे for example 25 lakh users per month डाले, it has already reached close to 38 lakh users now, and it is growing really well। तो ambition box तो मैंने grow कर ही रहे, है ना, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि हसल करके तुम जो सीखते हो, तो अ लॉट ऑफ दोस लर्निंग्स आई अप्लाई इन एम्बिशन बॉक्स, है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो whether it comes to say even writing on LinkedIn, or whether it comes to talking to people in some different industry, whether it comes to hiring people, and there's just so much that you can learn, and then you can apply those learnings anywhere, right, so it becomes very easy। मयूर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, आपने बोला कि योर लाइफ मोटो इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ मोटो इज टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। तो राइट, इतने बिजी स्केड्यूल में आप कैसे टाइम निकालते हो हेल्थ और रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने राइट, सो आई थिंक वहां पर ऐसा यानी इसी हेल्थ तो यानी आई वुड से कि इट्स अ नो ब्रेनर, है ना। तो आई रेड दिस रियली गुड, मेरे मेरे को फाउंडर ने बताया था, एक बार एक स्टोरी बताई थी कि ही सेड कि इफ आई कैन प्रूव इट यू कि यू आर ऑलरेडी रिच, है ना, तो तू खुश हो जाएगा। तो मैं बोला हाँ यार, मजा आ जाएगा, है ना, मेरे को तो नहीं लगता मैं अभी रिच हूँ, है ना, तो बता कैसे। तो बोले कि अभी बता कि अगर मैंने तेरा हाथ काट दिया, है ना, या मैंने तेरे पैर काट दिए, तो तू मुझे कितने पैसे देगा, है ना, अगर मैंने तेरे से तेरा हाथ या पैर मांग लिया। तो मैंने बोला कि दूंगा ही नहीं यार, ऐसे कैसे दूंगा, है ना। तो व्हाट इफ आई गिव यू ऑफर यू $1 billion फॉर इट। तो मैंने बोला यार तू $1 billion के तो $1 trillion भी देते तभी मैं मेरा हाथ या पैर तुझे नहीं दे सकता, है ना। एंड तो बोला देख तू ऑलरेडी बिलियनियर है ना। तो मुझे बड़ी हंसी आई, एंड मैं बोला हाँ यार, ये तो बात सही है कि यू ऑलरेडी हैव एसेट्स, राइट, एंड दीज एसेट्स आर वर्थ मच मोर देन इवन $1 billion और $1 trillion। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये हेल्थ, तो इनके बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट। वॉट एवर मिशन विजन जो भी है तुम्हारा, है ना, यू वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, विदाउट हेल्थ, राइट, you wouldn't be able to do anything। And when I say health, it is both, यानी mental health and physical health, राइट। एंड काफी वो तो मैं पहले तो हेल्थ एक्चुअली मेरा जो भाई था हेल्थ, इट वाज मोर लाइक आई वांट टू लुक गुड, है ना, कि मैं मसल्स वसल्स बनाएंगे, एंड वो टिपिकल 20 year old वाला जो रश है, एक एड्रेनलिन रश रहता है, राइट, वो रीजन था टू बी ऑनेस्ट, राइट। बट स्लोली नाउ इट हैज बिकम एंड बिकम नॉट ऑफ लुकिंग गुड और एनीथिंग, इट इज मोर लाइक कि यू हैव टू स्टे फिट, है ना। तो अभी मैं इसलिए नाउ आई डू अ लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइजेस। पहले मैं वही एक्सरसाइज करता था जिसमें मेरे मसल्स दिखेंगे, यू नो, ऑल ऑफ दैट टिपिकल कॉलेज शिट। तो नाउ आई डोंट, नाउ आई फोकस ऑन फिटनेस, है ना, कि नाउ इट्स अ लॉट ऑफ, तो मैं कार्डियो भी करता हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, यानी कुछ मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेस भी करता हूँ, राइट। सो हेल्थ इज लाइक अ नो ब्रेनर आई थिंक, एंड वो कोई भी अगर उसे फोकस नहीं कर रहा है उस पर, तो आई थिंक दे आर नॉट रियलाइजिंग कि एवरीथिंग एल्स शुड बी आई थिंक सेकंड प्रायोरिटी। इवन विद इफ योर इवन बिफोर योर फैमिली, आई वुड से हेल्थ कम्स फर्स्ट, बिकॉज तुम फैमिली को भी तभी हेल्प कर पाओगे तुम्हारी खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। सो हेल्थ इज आई थिंक द नंबर वन प्रायोरिटी, एंड इट शुड बी फॉर एनीवन। सेकंड इज रिलेशनशिप्स, दैट इज बिकॉज लाइफ में इफ यू थिंक अबाउट इट डीपली, तो हम सब स्टार्टअप फाउंडर जैसे कहते रहते हैं, राइट, कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारा ये सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, राइट, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बट इफ यू अगेन डीप डाइव फर्दर, तो मुझे ये रियलाइज होता है यार कि इट्स एक्चुअली अ लूप, है ना, हम लोग लूप में जा चुके हैं, राइट। एंड एवरी ईयर हम जिसे प्रोग्रेस कहते हैं, राइट, एवरी न्यू सोल्यूशन जो तुम बनाते हो, राइट, उससे नई प्रॉब्लम्स बन रही है, राइट। तो एज सच इफ यू थिंक अबाउट इट डीपली, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बट न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तुम्हारे सोल्यूशन से, राइट। सो इज द वर्ल्ड रियली बिकमिंग अ बेटर प्लेस? तो यस, फॉर द मोमेंट इट डज। बट अब जैसे मुझे जोमेटो स्विगी ने आदत लगा दी कि डिलीवरी यानी घर बैठे ही हो जाती है। अब लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार, 45 मिनट्स लगते हैं यार डिलीवरी में, मेरे को इंस्टेंट चाहिए, राइट। अब मुझे 5 मिनट में खाना चाहिए। अब कल को लोगों को 5 मिनट में भी तुम दे दोगे, लोग बोलेंगे हमें 1 मिनट में चाहिए, मुझे इंस्टेंट चाहिए, है ना। तुमने एक इंस्टेंट दे भी दिया तो लोग बोले यार मुझे गर्म खाना चाहिए, यार मुझे गर्म फूड ही चाहिए। तो यार तो इट इज नेवर एंडिंग, राइट। सो एनी प्रॉब्लम व्हिच इवन एंटरप्रेन्योर सॉल्व, आई थिंक वो कंप्लीटली एलिमिनेट कभी नहीं होती है। हाँ, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी,
बट जो तुमने सोल्यूशन दिया है उससे न्यू प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज दैट इज व्हाट ह्यूमंस आर। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस आई थिंक वी आर एक्सप्लोरर्स, है ना। एंड सिंस प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस कभी खत्म ही नहीं होगी, तो फिर यार बट हमारी लाइफ तो खत्म हो जाएगी एक दिन, राइट। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स इसलिए, यानी हेल्थ के बाद आई वुड से रिलेशनशिप्स इज नंबर 2, है ना। एंड देन नंबर 3 पे आ जाता है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी तुम्हें करना है, बिकॉज यानी यू वांट टू एंजॉय द जर्नी जो भी तुम्हारी है, राइट। एंड कुछ एक मीनिंग एंड पर्पस मिल जाता है लाइफ में, राइट। सो रिलेशनशिप्स आई वुड से कि इफ आई डाई टुमारो, तो आई वुड वांट टू हैव एटलीस्ट 10 or 20 people at least who know me really well, है ना, जिनसे मैं बहुत deeply closely connected हूँ, and who with whom I've shared those moments. It could be happy moments, sad moments, and all sorts of moments, right? So they could be your family, your friends, your spouse, could be anyone, right? Even your colleagues. So I think इसीलिए relationship I think बहुत जरूरी है, because our life is on earth is limited, right? But at the same time जो problems and solutions जो entrepreneurs है, जो दूसरा यानी third party ideas वाला, I think वो unlimited है, वो कभी खत्म नहीं होगा, right? Even after I die, even after say Elon Musk dies, right? The problem never ends. Steve Jobs आज जा चुके हैं, right? But Apple आज भी कुछ ना कुछ बना रहा है, अभी एयरपॉड बना दिया, right? अब कुछ और बना देगा, so that is never ending, right? So you should not, I think, deprioritize relationships. I think very important. बोल तो मुझे भी बहुत लेट पता चला ये। इकागाई एक करके मैंने बुक पढ़ी थी, इट्स अबाउट जापानीज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो राइट राइट उसमें उसका जो मेन जो क्रक्स था वो यही था कि प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स को देनी चाहिए, हेल्थ को देनी चाहिए। और जैसे आप जो एक तरह से जो साइड हसल्स करते हो या काम करते हो, वो इसलिए ही करते हो कि आपका ब्रेन बिजी रहे, मतलब ब्रेन काम करता रहे। राइट इन तीन राइट चीजों को उन्होंने मेन प्रायोरिटी दी थी। तो राइट राइट आई थिंक जो ये तीन चीजें हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लोग जानते हैं ये सबकॉन्शियसली, बट आई थिंक वेरी few of us follow it. You know, I also, for example, still struggle to, you know, जैसे मुझे मेडिटेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, I am still not able to meditate properly, है ना। A lot of आपने my डाली friends have थी told me, लिंक्डइन पे पोस्ट। yeah, yeah. तो वो भी एक है, बट आई एम, तो इट्स लाइक अ कांस्टेंट स्ट्रगल, बट आई एम एंजॉयिंग द जर्नी, है ना। तो एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट यानी फिजिकल हेल्थ में आई हैव नो इश्यूज, तो मैं फिजिकली यानी ऑलमोस्ट 100 पुशअप्स एवरी डे कर ही लेता हूँ, है ना। तो दैट यानी वो प्रॉब्लम नहीं आती, बट आई थिंक मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, है ना, नंबर 1, सेकंड वुड बी रिलेशनशिप्स, थर्ड वुड बी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, डू दैट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपके काफी सारे और भी इंटरेस्ट है जो मैंने लिंक्डइन पे पढ़े थे, जिसमें से एक राइटिंग भी है और डांसिंग भी है। राइट राइट तो अ, ये वाली चीजें आप फॉलो कैसे कर पाते हो इतने बिजी उसमें स्केड्यूल में? राइट। नहीं तो जो चीजें नेचुरली होती है ना वही करता हूँ यार। अभी तो आई हैव स्टॉप डूइंग नाउ, स्पेशली इसलिए मैंने वो लिखा था कि नाउ आई ओनली डू व्हाट आई लाइक, है ना। एटलीस्ट 95% तो वैसा रीच हो गया है कि जैसे डांस में अपने पैशन से करता हूँ, है ना। आई डोंट केयर मुझे सामने वाले को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, राइट। राइटिंग में भी ऐसा ही है कि तो इनफैक्ट लिंक्डइन पे जो मैंने लिखना शुरू किया, मैंने लॉकडाउन के बाद किया, लाइक वो तो आफ्टर कॉलेज आई थिंक 7 years हो गए मुझे, राइट। एंड बट लिंक्डइन पे आई हैव नेवर शेयर्ड माय लर्निंग्स, तो मुझे बहुत बड़ा ये लगा कि यार इतनी सारी लर्निंग्स है विच आई नो, बट मुझे हमेशा लगता था यार मेरे से तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो लर्निंग शेयर करे तो बेटर है ना। मैं शेयर करके क्या ही किसी को फायदा होगा। बट नाउ आई रियलाइज कि यार नहीं, हर लेवल पे लोग होते हैं, नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर लर्निंग्स, बिकॉज इट इज हेल्पिंग मी आल्सो टू क्रिस्टलाइज व्हाट आई थिंक, हाउ आई थिंक, है ना। एंड प्लस व्हेन यू राइट, तो you just can't write anything, है ना। तुम्हें खुद को पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, राइट। सो इवन वन पोस्ट दैट आई क्रिएट, आई यूजुअली टेक एन आवर टू राइट अबाउट इट, राइट। तो मुझे लगता है कि उसके उस चक्कर में मैं पुश करता हूँ एवरी डे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, राइट। तो इट ऑल ऑफ इट कम्स नेचुरली, वेदर इट इज राइटिंग, डांसिंग, तो एंड समथिंग दैट कम्स नेचुरली। तुम्हें अगर मजा आ रहा है तो तुम करते हो, राइट। यानी तुम्हें बोलना नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आई सी कि जैसे गेमिंग, आई सी कि बहुत लोगों को बहुत यानी उसमें टाइम निकालना नहीं पड़ता। यू नेवर से कि गेमिंग के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है, गेमिंग को टाइम निकाल ही लो तो मजा ही इतना आता है ना। तो सिमिलर टू दैट आई थिंक वो था। तो डांसिंग फॉर एग्जांपल वाज वन थिंग जो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था, राइट। एंड मैंने फर्स्ट डांस ही अपना मेरे शादी पे मेरे संगीत पे किया था, राइट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट, यार तो डांस और अच्छा करता है, तो बड़े वहां से मुझे बड़ी बूस्ट मिली, राइट। एंड देन आई स्टार्टेड डांसिंग मेरे यानी फैमिली में जो संगीत के फंक्शन होते थे, राइट। तो उसमें यानी जो बिग फैमिली, राइट, आई कैसे जॉइंट फैमिली है, तो उसमें काफी सारे मैरिजेस सब हमारे कजिन ब्रदर्स के आसपास ही हुए, तो वहां पे ज्यादा किया। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माय ओन आल्सो। फिर मैंने एक टीचर लगा लिया जो घर पे आते थे, वो सिखाते थे, एंड आई स्टार्टेड लविंग इट सो मच। मैंने देखा कि डांसिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स की वेर यू हैव टू लेट योरसेल्फ लूज, राइट। एंड वो जो इनहिबिशन है तुम्हें निकालनी पड़ती है, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस आल्सो, तो उस वजह से भी करता हूँ। और लिंक्डइन पे आपकी हॉबीज में ये भी लिखा था कि इन फ्री टाइम आप बच्चों को बोलते हो कि
एजुकेशन सिस्टम से बाहर आओ और उन्हें एडवाइस करते हो कि मैकबुक ले लो। तो इसका क्या राइट। मतलब था? Right. So इसमें so there are so a couple of things I'm very passionate about. One of them is education system. मुझे ऐसा लगता है personally कि मेरा बहुत time waste हुआ है ना in learning something. जैसे for example I'm a civil engineer, है ना, by degree on paper I'm a civil engineer. But अगर तू मुझे बोल देगा कि यार मयूर एक बंगलो बनाना है, right? I can't do that. है ना, मुझे practically knowledge एकदम zero है, अंडा, right? And 5 years in college, right? 5 years of यानी in this so-called यानी top college of India, right? जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअली इज नोन, आईआईटी मद्रास इज नोन फॉर इट्स बेस्ट इन क्लास फैकल्टी फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, राइट? तो so the teachers were really good, right? What lacked I think is the way they structure the curriculum. तो practical knowledge ही नहीं मिल रही है, right? कुछ laboratories है, probably उन्होंने जिस टाइप से बनाया है, और something to do with how companies also hire, है ना, कि जो पे पैकेजेस देती है सिविल इंजीनियर्स को, समथिंग अराउंड इट, वो पूरा है ना चीज इतना बोर हुआ मुझे, राइट? एंड एजुकेशन में कभी कभी मेरे को लगता है कि इवन टिल 12th स्टैंडर्ड इफ यू सी, है ना, कि अब सह्याद्री हिल्स का क्या हाइट है, राइट? यानी इवन बायोलॉजी में हम इतने डीप में चले जाते हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना, फ्लावर के अराउंड वो पेटल्स में ये इसको बल्ब कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं, हम डायग्राम्स बनाते थे, राइट? 7th स्टैंडर्ड में, फिर 8th में भी फिर से वो कर रहे हैं, राइट? यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इतनी बार पढ़ा दिया, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टाइम चला गया उसमें, राइट? एंड जब प्रैक्टिकली तुम दुनिया देखते हो तो यार वो बहुत ही अलग है ना, नन ऑफ दी स्किल्स एक्चुअली अभी हमको यूज कर रहे हैं, राइट? एंड ऐसा भी नहीं उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया, कोई कोई चीजों में फालतू में हम इतने डेप्थ में चले गए, जैसे ज्योग्राफी है, या फिर जैसे हिस्ट्री है, जैसे सिविक्स है, उसमें इतने डेप्थ में चले गए कि अभी मुझे पता ही नहीं है उसका कि क्या यूज हो रहा है मेरे को, ऐसा है ना, थोड़ा बहुत हो रहा है जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि तुम वो जनरल नॉलेज करके इंटरेस्टिंग तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के भी करवा सकते थे, है ना? मैं एक ही महीने में वो पूरा सीख लूंगा, मुझे हर साल उस पे एक कोर्स करके, राइट, इतना मैंने सारी चीजें पढ़ी, एंड प्लस वो जो पूरा रट्टा वाला सिस्टम है, राइट? तो ऑल ऑफ अस आई थिंक आर अवेयर ऑफ दिस कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली रॉटन है ना, जो रिसेंटली जो पॉलिसी चेंजेस आए आई थिंक वो काफी अच्छे हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट, जैसे आई मेट दिस रियली इंटरेस्टिंग गाय इन फ्लाइट, जब मैं औरंगाबाद से दिल्ली जा रहा था, राइट? एंड आई कन्विंस्ड हिम ऑन दैट फ्लाइट इटसेल्फ टू ड्रॉप आउट, है ना, वो अलग बात है, वो ड्रॉप आउट नहीं है, बट एटलीस्ट ऑन द साइड, है ना, ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग, एंड वो कॉलेज से पूरा अलग है ना, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, वो प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया, तो आई एम मेंटरिंग हिम एक्टिवली, अभी अराउंड हमें 6-7 महीने हो गए, है ना, आई एम मेंटरिंग हिम, तो एंड वो काफी अच्छा हो रहा है, लाइक आई कैन सी दैट प्रोग्रेस कि वो प्रैक्टिकली ही इज नाउ बिकमिंग सो स्मार्ट, नाउ आई टेल हिम यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर पीयर्स, है ना, तुझे प्रैक्टिकली इतनी नॉलेज है, उनको तो अभी कुछ है नहीं, अभी उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी, अभी चल रहा है उनका टेक्स्ट बुक नॉलेज ही दे रहे हैं, right? So my co-founder also had kind of convinced him to drop out from college, and he actually did. एंड वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एंड ही टुक दैट लीप, तो आई थिंक उसमें मेरा कन्विंसिंग 10% था, 90% उसका ही गेम था कि ही हैड टू फाइनली टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि हाँ यार, मैंने इवन इफ आई क्विट, है ना, आईआईटी मद्रास से ही होगी, तो एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, तो माय को-फाउंडर इज एक्चुअली अ ड्रॉप आउट, राइट? तो वहां से मेरा पैशन आया, तो अब मुझे कोई मिलता है तो आई कन्विंस देम, वो तो मेरे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या मेरे इवन इंटरव्यू करने कोई आता है, मैंने बोलते हो क्या कर रहे हो, तो मुझे बोलते हैं अभी बस हम ये करेंगे, फिर एमबीए करने जाएंगे, तो मैं सीधा उन्हें मना कर देता हूँ, आई टेल देम कि यार दिस इज बुलशिट, है ना, वो तो तुम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सीखोगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो तुम्हें एमबीए सिखाता है, संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो है यार, वो तो फ्री में है वो, राइट? एंड यू ही टीच यू दोस सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस लेसंस इन सच अ सिंपल लैंग्वेज, एंड ऐसे बहुत सारी चीजें, देयर आर ब्लिंकिस्ट है, तुम बुक समरीज पढ़ लो, राइट? यू कैन जस्ट रीड आई थिंक 5 बुक्स, एंड तुम्हें इतनी नॉलेज आ जाएगी जितनी कोई एमबीए स्टूडेंट को नहीं है, राइट? सो उस वजह से एजुकेशन वाला है, एंड सेकंड इज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मैकबुक्स, है ना, बिकॉज पर्सनली मेरी प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से बहुत बढ़ गई, है ना? बहुत लोग ये रियलाइज ही नहीं करते, लोगों को क्या लगता है कि अब सक्सेस के लिए हार्ड वर्क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट आई फील कि लॉट ऑफ दीज सटल सटल थिंग्स, है ना, कि जैसे मैंने मैकबुक यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, पहले इनिशियली ऐसा लगता है कि कम हो गई है, बिकॉज मैं विंडोज से थोड़ा टाइम लगता है शिफ्ट होने में, बट तुम जल्दी देखोगे कि जस्ट बिकॉज लैपटॉप जल्दी स्टार्ट होता है ना, तुम ज्यादा काम करोगे, ये सब हमारा सबकॉन्शियस एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर बड़ा जल्दी चेंज होता है, राइट? तो जैसे मैं पहले 10 बार लैपटॉप खोलता था, अब मैं 20 बार खोलूंगा, राइट? एंड जस्ट बिकॉज कोई फाइल जल्दी खुलती है, अब मैं शायद ज्यादा डिजाइन करूंगा, ज्यादा कोड करूंगा, मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, ज्यादा वायर फ्रेमिंग करूंगा, राइट? सो ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत मैटर करता है, सो मैकबुक के साथ आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, है ना, जिनके पास लैपटॉप्स एंड फोन है, हम इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, सो इफ यू कॉम्प्रोमाइज देयर यू आर प्रीटी मच स्क्रूड, राइट? तुम 8 से 10 घंटा तो इजीली अपने लैपटॉप एंड मोबाइल के सामने होते ही हो, एनीवन हु इज वर्किंग, राइट? एंड वहां पे तुम विंडोज या कुछ यूज कर लो, तो तुम्हारा तो जमीन आसमान का फर्क देखा है मैंने, समवन हु यूजेस अ मैक, है ना, एंड एप्पल्स टू एप्पल्स अगर तुमने कंपेयर किया, गिवन द सेम बैकग्राउंड, सेम ऑल द अदर थिंग्स आर सेम,
तो कोई जो मैकबुक यूज कर रहा है, मैंने फिनोमिनल रिजल्ट देखे, है ना। तो मैंने मेरी टीम में भी पर्सनली आई हैव कन्विंस्ड देम टू बाय मैकबुक। सो इन्फो डजंट गिव मैकबुक्स एज सच, है ना, वो विंडोज लैपटॉप देता है, बट आई टेल देम कि यार तुम अपने पैसों से खरीदो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ liability. And same goes for I would say a lot of things. So even for example having like a really good workstation, उसमें तुम्हारी सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है. A lot of people compromise on the chair that they are sitting in, है ना, on the desk that they are having. सब लोग यानी अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत लोग मैंने देखा है कि बेड से ही काम कर रहे हैं. तुम्हारी थोड़े दिन में तुम्हारी पीठ दुखने लग जाएगी, तुम्हारे नेक पेन होना शुरू हो जाएगा, बैक पेन शुरू हो जाएगा, राइट. तो उससे क्या होगा, तुम कम काम करोगे, एंड बिफोर यू नो यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, बिफोर यू नो यू विल ड्रॉप दैट साइड हसल दैट यू आर डूइंग, है ना, क्योंकि ये सब में टाइम लगता है यार, ये सब में बहुत एफर्ट लगता है, राइट. एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग अलोंग विद समथिंग एल्स, राइट, तो तुम एटलीस्ट 12 घंटे तो तुम्हें करना ही है. तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लैपटॉप, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्क स्टेशन. सो ऑल ऑफ दीज आर लाइक स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आई थिंक लोग सक्सेस में बहुत इग्नोर मार देते हैं कि ये सबको इनको कंट्रीब्यूशन मिलती नहीं है. तो अभी जैसे आपने बुक्स की बात करी और वीडियोस की बात करी, कंटेंट की बात करी, तो जैसे अब मैंने देखा कि आप लिंक्डइन पे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप स्टोरी शेयर करते हो, काफी इंसाइटफुल होती है वो. तो वैसे कोई बुक्स या कोई जो आप ऑनलाइन कंटेंट जो आप रेकमेंड कर सको मेरे को, या जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको. Surely it actually depends कि तुम्हें कहाँ पे ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना. So for example, I am very curious about startups, है ना. तो I don't have the money or the time right now to even hire someone and give me like a download. Otherwise, so I would have done that like in a minute, है ना. कि मैं बोलता कि यार मुझे फटाफट ज्ञान दे दो, like मुझे बता दो कि फॉर एग्जांपल प्रैक्टो कंपनी है, मुझे समझा दो कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वहां से कैसा यानी पैसा फ्लो होता है. फॉर एग्जांपल आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि जो पेमेंट गेटवेज है तो कौन उसमें कितना कमीशन रखता है, हाउ एग्जैक्टली इज द मनी फ्लो, इतने सारे यानी बीच में यानी मीडिएटर्स है, राइट. एंड व्हाट एग्जैक्टली हैव द पेमेंट स्टार्टअप डन, राइट. सो ये सब यानी क्यूरियोसिटी रहती है, राइट. एंड व्हाटएवर यू आर क्यूरियस अबाउट, आई वुड से कि यू शुड रीड दैट, है ना. यू शुड नॉट रीड probably books recommended just by someone because यानी तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये बुक अच्छी है क्योंकि इसने recommend की है. It's more about कि तुम्हें किसी ने Sapiens recommend की, for example, right. And तुम्हें लगता है हाँ यार मैंने समथिंग टू डू विद दिस, तो तुमने एक जिस्ट पढ़ ली है, तुम्हें लगा एक दो वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, हाँ यार ये मुझे इसके डेप्थ में जाना है इस टॉपिक के, तो आई वुड से कि फिर तुम उसके डेप्थ में चले जाओ, है ना. वेदर इट इज स्टार्टअप्स, वेदर इट इज आर्ट, वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज मेडिकल, कोई भी फील्ड की कोई भी बुक है, राइट. इट कुड बी फिक्शन आल्सो, है ना. यू विल बी सरप्राइज्ड कि इवन फिक्शन प्लेज सच अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग योर इमेजिनेशन, है ना. तुम कल को वो करके शायद एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, है ना. वो करके शायद तुम कल को एक बुक लिख सकते हो, दैट इज हाउ यू कैन मोनेटाइज दैट. But so read any book, I mean fiction, non-fiction, something that you are curious about, है ना. But if you are curious in startup space तो बहुत सारी बुक्स है, तो आई थिंक तुम बस गूगल कर लो तो वही बुक्स है, मेरी भी रिकमेंडेशन. सो आई वुड से लीन स्टार्टअप है ना, या फिर नेटफ्लिक्स वाली जो है दैट विल नेवर वर्क, राइट, या फिर फिल नाइट की जो शू डॉग है ना. तो ये सारी बुक्स आई थिंक आर द मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड बुक्स. तो आई थिंक वो 10 बुक्स तो तुमने पढ़ ही लेनी चाहिए, है ना. द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, तो ऑल ऑफ दिस बुक्स आर लाइक द टॉप रिकमेंडेड बुक्स, जो टॉप 10 में वही आते हैं टिपिकली. एंड वो तुम अगर पढ़ लोगे तो दैट गिव यू अ गुड टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. द एयरबीएनबी स्टोरी वो भी काफी अच्छी है, राइट. एंड ऑल दीस बुक्स आई थिंक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से कि व्हाटएवर यू आर क्यूरियस अबाउट, है ना, रीड दैट. सो दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन. तो यंग या एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एडवाइस जो आप दे सको, जो भी स्टार्ट करना है यंग या अभी एंटरप्रेन्योर, जॉब में है. राइट. आई वुड से कि डेफिनेटली टेक दैट बेट, है ना. इट इज हार्ड, इट इज रिस्की, राइट. बट वो एक अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग बहुत मिलती है कि यू स्टार्टेड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, है ना. टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि यू विल फील दैट कि यार एकदम आउट ऑफ थिन एयर तुमने कुछ बना लिया, राइट. यानी जस्ट तुमने कुछ लिख के, तो कोड वगैरह ऐसा है कि अगर तुम कोड कर रहे हो तो तुम्हें लाइव देखने मिल रहा है, तुम्हें सामने तुम क्या कर रहे हो. कल को अगर तुमने एक कंस्ट्रक्शन में कंपनी खोलनी है तो तुम्हें लग जाएगा एक आध साल 2 साल तो वो बनने में, राइट. सो इट इज नॉट इंस्टेंट, है ना. तो ये जो इंस्टेंट वाले लोग हैं, राइट, जो हमारी जनरेशन है टिपिकली, कि जिनको इंस्टाग्राम टिकटॉक में है ना हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइक्स बहुत जल्दी चाहिए, राइट. हमने कुछ डाला हुआ लाइक्स चाहिए, ये चाहिए. तो आई थिंक फॉर दैट आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप वो के कैटेगरी इंटरेस्ट डेफिनेटली देता है, right. Whether you are even continuing or planning to do and be in the job industry and you don't do it full time, my advice would be कि एक side hustle type करो, right. It could be even a small Instagram page, है ना. Even that's a startup, है ना. एक छोटा Instagram page बना लिया, या एक छोटा सा Reddit bot बना लिया, कुछ भी बना लिया, right. Even that is I would say like a startup. तो start something, है ना. And once you are on that journey, तुम ही देखो कि तुम्हें इतनी आइडियाज आएंगी कि you will not have time, you will not have resources to even work on them, है ना. वो तो मेरी अपनी पर्सनल लिस्ट है, आई वुड से कि ऑलमोस्ट 100 आइडियाज है व्हिच आई फील मेरे को करनी है,
है ना, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है ना करने के लिए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स के पास एक या दो आइडिया मैक्स के लिए तुम टाइम अच्छे से दे सकते हो, बाकी में यू कांट डू इट, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग योर रिसोर्सेज टू मल्टीप्लाई टाइम, हायर पीपल, बाकी तुम डीपली इन्वॉल्व रह नहीं सकते। इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर एंड बी अ पार्ट ऑफ सम अदर स्टार्टअप जर्नी, राइट? So hustle, I would say hustling is the right way to go about this, and it teaches you a lot of skills. है ना, बोलो it's a journey which I would say anybody can enjoy, anybody. So thank you मयूर for joining us. बहुत ही Sure, मजा आया आपसे बात करके, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू वेरी sure, मच। Raghav. And I think it's a fantastic thing that you are doing, getting people to talk about their story, their journey, their learnings, right? And I think we need more such people like you, right? And I hope that you scale this thing also big time, and you have like not hundreds but thousands and 10,000s of videos like this, right? And all the best. You're doing a great job, a very noble job, I think. Thank you, Thank you. thank you, thank you very much. Bye. Bye. Bye.